as we debate a total overhaul of the criminal system after many, many years, and the government is bringing in something which is going to send out a message to the entire world, not only to the people in this country, but to the entire world, कि आज जब भारत एक विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चलना चाह रहा है, तो ये विश्व गुरु अपने लोगों के उनके इस सिस्टम को जब ओवरहॉल करता है, तो ये आगे का पीछे से सीख के आगे का क्या दिशा देता है. We are looking into the future where we are waiting to compete with the developed countries, and we cannot come up with draconian laws. We can either become an authoritarian state like China, or we can go where human lives, human values, our rights as enshrined in the Constitution for everybody, from a minority to an SC to the last person in the queue, are all given equal importance and equal regard. Before me, my colleague Owaisi Saab said a lot of things, and I am in agreement with many of those things, because the fact of the matter is that history has shown that whenever there are atrocities, it is the minority which has suffered the maximum. And I come from a state where we have been at the receiving end of this forever. Sir, today the most important thing for any human being is his freedom, as enshrined in the Constitution, my civil rights, my right as a human being to express what I believe, to be able to say what I want, and not live in fear of a police state misusing their powers to hound me because I have certain beliefs and I have the right to express them. Unfortunately today, sir, this law is going to give unbridled powers to the police and make it into an authoritarian state rather than a democratic country that we all want to live in, as enshrined in Baba Saheb Ambedkar's his constitution. Sir, in this bill, I would just like to make a few small points, that what is absolutely clear is that the police is getting the kind of powers which I don't think any police force should ever have, because it is clear that everybody in all these posts who are appointed by political people. And obviously their allegiances are towards political people. I don't need to tell what the Supreme Court says about certain caged parrots. But here we are talking about police at the level of state also, starting from the Thanedar to the SSP, to the IG, to the DGP. All are political appointees. And because of that, there is political pressure in their actions. And everybody sitting in this August House, every political party has borne the brunt of that. And nobody should understand it better than us and better than our Honorable Home Minister. Which is why I feel that these powers which are being given without any checks and balances to do as they want. The police has been given, there is a UAPA law, but today the police is being given exactly the same powers. And there are no checks and balances whatsoever, sir. So these arbitrary powers which are against liberty, democracy, dissent, opposition, and I think here is a living example that such an important bill is being discussed, which should be in a fair and transparent manner with everybody allowed to air their views. And here there is only the ruling party and a handful of us opposition people who are being allowed to say what we want. This is not the way for such an important bill to be passed, sir. Sir, these bills have many discrepancies. I don't know whether I should repeat what Owaisi Saab has already said. For example, the police custody up to 60 days, how the police are allowed to decide what they want to do and how they want to do it. I don't want to get into all of those, sir. My point is more on the human rights angle of it, because as a Sikh, sir, एक सिख होने दे नाते सा मैं इत्थे दसना चाहांगी कि साडे पंजाब ते पंजाबियां दे उत्ते जिन्हां यह पुलिस एट्रोसिटीज नूं असीं सहा हैगा, साडा इतिहास गवाह हैगा सर. ये ओ कौम हैगी सर जिहड़ा मैनूं अज दसन दी लोड़ नहीं, लेकिन शायद सारा हिंदुस्तान जानदा है, लेकिन जिहड़े नहीं जानदे ने उन्हां नूं जरूर मैं दसना चाहांगी कि सब तो पहले ओ साडे 9वें गुरु सीगे, गुरु तेग बहादुर साहब, जिन्हां ने तिलक ने जंजोई ते रक्षा वास्ते अपना सीस कलम कर दिता, अपनी शहादत दी एक दूजे धर्म नूं जिंदा रखण वास्ते. ये साडा धर्म सिखांदा है. आज भी साडे गुरुद्वारियां च सरबत दे भले दी अरदास होंदी है. सो
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, whether it is pre-independence, post-independence and till date, the Sikh community has made the largest sacrifices for this nation and are the most patriotic community, and I would like to highlight a few of these things, sir. Independence ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, 1.5%, 1.5%. And sab to zyada sufferings at the hands of majorities, this small community. I would like to tell this August House, 77% in the freedom struggle, 77% of all those sent to the gallows, out of which 81% of those, 77% out of the total people sent to gallows, 81% were Sikhs. So, during Quit India movement, when many indiscriminate arrests were made, 70% of those were Punjabis who were arrested. Out of the 2,000 people who joined the Indian National Army when army was formed, 60% were Sikhs. Out of the 121 patriots hanged during the freedom struggle, 93 were Sikhs. Out of the 2,600 awarded life imprisonment during the freedom struggle, 2,147 were Sikhs, sir. Out of the 1,300 martyred in Jallianwala Bagh, 799 were Sikhs, sir. So, जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम ये सिखों ने 1925 में 1920 में अपने गुरुद्वारा ब्रिटिश के पिठुओं से आजाद हमने करवा लिए थे अपने गुरुद्वारा को, जब देश नहीं आजाद हुआ था सर. After that, all leaders of every party, be it Pandit Nehru, who said, I salute the Akalis who have started the struggle for freedom and are fighting for it. Sir, this was in 1920 when Jawaharlal Nehru, then who became Prime Minister, later said this. आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, गुरु का बाग मोर्चा has given birth to the freedom movement which must lead us to Swaraj. ये freedom movement हमारे अकाली दल ने शुरू करी थी. लाला लाजपत राय जी said, freedom is our birthright. The Akalis are the legitimate sons of Mother India who are fighting for her. ये लाला लाजपत राय जी के वर्ड से गए. So in every sphere, I can say that considering we were hardly 1.5% of the population, ये भी मैं कह सकती हूँ, जो आज पंजाब हिंदुस्तान में है, इसमें भी हमारे मास्टर तारा सिंह जी की इंटरवेंशन, जब when he went to the Muslim League flag atop the Punjab Assembly at Lahore and pulled it down, which saved half of Punjab for India. Otherwise, entire Punjab would have gone to Pakistan, left to Mr. Nehru. And the Yamuna River would have been the dividing line between India and Pakistan. So, sir, ये लड़ाई पंजाबियों ने लड़ी. उसके बाद हमारे बॉर्डरों में देश का बंटवारा हुआ. हजारों लाखों सिख हुआ और हिंदू भाईचारों का अपने वहां से उजड़ के सब इधर आए. एंड लेकिन सर, ये सब होने के बाद what did we receive post independence? All kinds of atrocities by the state. हमारे पंजाब का बंटवारा हुआ, लड़ाई हमने लड़ी, देश को आजाद करने के लिए कितने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए, और जब देश आजाद हो गया तो पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग राज्य बनाए गए. हमारे को राजधानी नहीं दी गई, हमारा पानी खो के दूसरे राज्यों को दे दिया गया अगेंस्ट रिपेरियन प्रिंसिपल्स. हर तरीके से पंजाबी स्पीकिंग गांव को दूसरे. सर प्लीज, अब तो कोई ऑपोजिशन नहीं है, अब तो आज टाइम दे दीजिए. दिल पर बोले आप, इतना तक मैं आ रही हूँ उस पर सर. मैं एट्रोसिटीज की बात कर रही हूँ कि कानून कितना जरूरी होता है. उसके बाद सर, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड का क्या कैसे हुआ, वो हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर इंदिरा गांधी के कहने पे जब वहां टैंकों तोपों से चढ़ा के हमारी सबसे जो धार्मिक स्थान है उधर जिस तरीके से टैंकों तोपों के साथ अटैक किया गया, गुरपुरब के दिन जब वहां पे श्रद्धालु थे उनके कत्ल करके सारा सरोवर लाल कर दिया खून से. ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, जब प्रधानमंत्री अपने ही लोगों के ऊपर, तो क्यों आज तक इंदिरा गांधी के ऊपर क्यों कोई कानून नहीं लगा? उसके बाद जब हमारे दिल्ली में 84 का जेनोसाइड हुआ सर, तो कितने हमारे सिख लोग के कत्लेआम शरेआम हुआ, सारा देश जानता है ये कांग्रेस की देन. आपको हैरानी होगी, एक एफआईआर, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्यों आज 40 साल होने के बाद आज भी हमें तो कोई जस्टिस नहीं मिला? आपके इस नए कानून में सिखों के साथ कहाँ इंसाफ है? कौन सा वो पॉइंट है, मुझे बताएं जरा गृह मंत्री जी, वो कौन सा है जहां 40 साल बाद हमें इंसाफ मिले? और सर, यही मैं कहना चाहती हूं कि हमारे सिखों के जब धार्मिक स्थानों पे अटैक हुआ,
हमारे कत्लेआम हुए, कोई वहां पे किसी को सजा नहीं मिली, कोई FIR नहीं लगाई गई, कोई हमारे बहनों के साथ जो रेप हुआ, कोई हमारी सुनवाई जब कहीं नहीं हुई। और इसी तरह पंजाब में जब हजारों नौजवानों को, बेगुनाहों को UAP लगा के, ऐसे ऐसे कानून लगा के, जब उनको एक पूरी जवानी, अब यहाँ पे वो बिट्टू नहीं है कांग्रेस के MP साहब, उनके जो दादाजी थे, पूरा बेअंत सिंह ने एक पूरी पीढ़ी सिखों की खत्म कर दी। ऐसे ही पुलिस एनकाउंटर्स करके, फेक एनकाउंटर्स, आज तक हजारों लाखों नौजवान लापता, पता ही नहीं लगा कहां गए फेक एनकाउंटर्स में, क्योंकि पुलिस के पास अनबिल्डेड पास थे। तो इस तरह के विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस बाहर कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, ये हमें पंजाबियों में देखा। और सर, जब ऐसे हालात है, जब नौजवानों को मारा जा रहा था पुलिस से, कल क्यों आपको हैरानी होगी, कल की कहानी, एक ऐसी लेडी 19 साल की, उसके हस्बैंड को उठा के मार दिया पुलिस एनकाउंटर में। और अब कितने 30-40 साल बाद आज थानेदार से लेके DGP तक, IG तक, सबको पुलिस ने, अब जाके अदालतों ने उसको इंसाफ दिया, क्योंकि फेक एनकाउंटर था, फैब्रिकेटेड था, उसको एक टेररिस्ट बना के उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये तो लाखों हजारों से हर घर की कहानी थी पंजाब में 80 के दहाकों में। और सर, जब ऐसा माहौल था, जब नौजवान मारे जा रहे थे, तो उन लोगों को रोकने के लिए जो हमारे सब सिर्फ कुछ सुझाव कुछ देना चाहती हैं? जी सर, मैं उसी पे आ रही हूँ सर। उसी पे मैं कहना चाहती हूँ, जब ऐसे का माहौल पूरे पंजाब में 10-12 साल चल रहा था, तो कुछ नौजवान, अब इधर ही इस हाउस में आपने देखा, कुछ नौजवानों ने कुछ दिन पहले क्या किया, क्या कह रहे थे वो नौजवान, कि हमने अपनी बेरोजगारी, मणिपुर या फार्मर्स के बारे, तो नौजवान अपने भावनाओं में बह के उस समय उन्होंने कुछ कदम उठाए। 25-25 साल के नौजवान थे। हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत विनम्रता से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में आज भी उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है सर। जो पंजाब के इस माहौल में जिन्होंने उठ के भाई राजूआना जी जैसे, दविंदर पाल सिंह भुल्लर जैसे, गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने जो कोई कदम उठाए सर, जो उन्होंने कोई कदम चके, वो क्योंकि पंजाब के हालात हो जैसे गए, ते हुण उन्हां सारियां नूं 28-28, 30-30, 35-35 साल हो गए, वो जेल च बैठे हुए ने। So where in the constitution or where in legal prudence does it say that you can just be imprisoned forever without any, आपको कोई इंसाफ ना मिले? ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है। सर 1 मिनट, 5 मिनट सर। Sir, here I want to say that in the mercy petition, जो आपने mercy petition के बारे में कहा है, सर फॉर एग्जाम्पल हमारे भाई राजूआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं, क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करी। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell. For 12 years his mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says, besides his family, nobody can apply for it also. If the person has no family, sir, उनके माँ बाप जे मर गए, तो कौन करेगा? ये कहाँ से ये आप ये लेके आ रहे हैं? और 12-12 साल को इसका फैसला ना हो, तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है? जिस करके सर आई वुड से कि ये आप मर्सी पिटिशन वाला, तो आई वुड अपील टू यू सर, जो 8/8 की चक्की में 28 साल, 25 साल से अब 60-65 साल उनकी उम्र हो गई, और सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो, और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी। तो सर कई लोग ऐसे जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे, उन्होंने बाय लॉ लीगली अपने तरीके से उनको पैरोल भी मिल गया, वो अपने घर पे भी रह रहे हैं, अदालत ने उनको घर भेज दिया, राजीव गांधी के किलर भेज दिए। तो जब वो उनको कोई सोसाइटी रहे, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड कंडक्ट उनके प्रिजन में रहा, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फ्री करा जाता? सर जस्ट 2 minutes मोर। सर गुरु साहब के 550 सालों पे सरकार ने इस चीज का वादा भी किया था। आज इस कानून में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि when remission has been granted, when these prisoners are going to be set free, which you promised in 2019, आज तक नहीं हुआ। बल्कि आप UAPA उठा के आप पूरा पुलिस को वो पावर्स दे रहे हैं, जो पुलिस आज भी उठा के कोई भी चीज, किसी को भी टेररिस्ट, 2019 पे आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट कर दे। इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है, देश में भी देख रहे हैं, किसी को भी टेररिस्ट। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों ने सिक्खी का प्रचार करने के लिए कुछ पैम्फलेट घर पे मिले, तो उनपे भी UAPA लगा दिया।
और फिर उठा के दूर दूर भेज देते श्री जहां बेल तक रमेश नहीं विदुड़ी होती है। जी। सो सर, मैं अपील करती हूं कि इस कानून का ये पुलिस का मिसयूज का हम इस चीज का गवाह जी। है, और ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं Thank हुए you। तो यही कुत्ता कल आपको विदुड़ी जी